لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، مشتعل مظاہرین نے گاڑی پر لاتیں اور مکے برسائے، نعرے لگاتے رہے۔ پی ٹی آئی کے حامی گاڑی کے پیچھے بھاگتے نعرے لگاتے اور غلیظ زبان استعمال کرتے رہے۔ پاکستانی حکومت کا واقعے پر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ، حملہ آوروں کا شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، قاضی فائز عیسیٰ اور ہائی کمشنر کی گاڑی پر حملے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ فوٹیجز کے ذریعے شناخت کر کے پاکستان میں بھی ایف آئی آر درج کرائی جائیں گی۔ ہائی کمیشن نے برطانوی حکومت کو حملے کی شکایت کر دی۔ حملہ کرنے والے 9 افراد کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا انسداد دہشت گردی، عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کے رویے پر برہمی کا اظہار۔ اعظم سواتی کے بار بار جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس میں ریمارکس دیے۔ صافت ٹرائل میں کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں ایسی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ یہ شخص دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ یہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ اب تک یہیں ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ وزیر قانون سے بات کریں۔ عدالت نے جج ابو الحسنات سے وکیل علی بخاری کے دیے گئے بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا۔ ہواؤں کو پاک بھارت سرحد کا کیا معلوم؟ جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے، اسموگ سے لڑنا ناممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کی خواہش مند، کہا اسموگ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے، سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ مریم نواز نے دہلی کی وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اسموگ پر قابو پانے کا مشن، لاہور میں گرین لاک ڈاؤن لگ گیا، پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیوس روڈ، کشمیر روڈ، ڈیورنڈ روڈ کے علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن، ایبٹ روڈ پر شملہ پہاڑی سے گلستان سنما تک پابندیاں لاگو۔ لاک ڈاؤن کے دوران تعمیراتی کاموں پر پابندی، چنگچی رکشے لاک ڈاؤن والے علاقوں میں داخل نہیں ہوں گے، کمرشل جنریٹرز پر پابندی، کھلے مقامات پر باربیکیو پر رات 8 بجے کے بعد پابندی، شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے، لاک ڈاؤن والے علاقوں میں پانی چھڑکاؤ کے بغیر جھاڑو لگانے پر بھی پابندی۔ پابندیاں 4 نومبر تک رہیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ کے خاتمے کے لیے 300 الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جا رہی ہیں، گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیشن شروع کی جا رہی ہے، غیر قانونی بھٹوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ کراچی میں بلا روک ٹوک ہیوی ٹریفک سڑکوں پر دندنانے لگی، حادثات معمول بن گئے۔ شیر شاہ فلائی اوور پر کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا، ایک شخص جاں بحق۔ ملیر میمن گوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے 3 بچے زخمی۔ سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹریلر نے پولیس موبائل سمیت کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑھتے حادثات پر تشویش کا اظہار، کہا انسانی جانوں کے حوالے سے حفاظتی انتظامات کیے جائیں، قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری 2.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر کرنے کا اعلان۔ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ ریاض میں وزیر اعظم کی سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری سے ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری۔ سعودی عرب پاکستان میں مزید 600 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں سمجھوتوں کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی اور ان پر کام شروع ہو گیا، دونوں ممالک مل کر ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم کی ویتنام کے ہم منصب سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر موضوعات پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے دوحہ پہنچ گئے، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی مذمت۔
नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म, कहा साबिक़ चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर किए गए हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करके हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। हमला करने वालों की शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई होगी। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफज किया जाए, यह करप्शन के खिलाफ एक कला है। मालूमात तक रसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अत्तर मिनल्ला का इजाफी नोट, लिखा शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरखास्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, बल्कि इसकी कुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। अमरीकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बात कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ उनके कब्जे में है। अब तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया गया है कि घरों में रहो। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी उमूर में अलीमा खान की मुदाखलत से परेशान। सीनियर रहनुमाओं ने मामला बानी PTI के सामने उठा दिया। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से मुताल्लिक हक़ाइक़ जाने बगैर तनक़ीद करती हैं। जेल मुलाकातों में बानी PTI को भी मिसगाइड कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी रहनुमा ने अलीमा खान के बाद राब्तों की भी शिकायत की। बानी PTI ने रहनुमाओं से बहन के बयानात को नजरअंदाज करने का कह दिया। अलीमा खान का मौक़िफ़ है, वो भाई की रिहाई चाहती हैं, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा बानी PTI को जेल में दिया गया खाना ठीक नहीं था, जिसके बायस उन्हें कैद हुई। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की चागी से पोलियो केस रिपोर्ट होने की तस्दीक। रवा साल बलूचिस्तान से 22 पोलियो केस रिपोर्ट हुए, मजमूई तादाद 43 हो गई। मोदी सरकार की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत। कनाडा का कहना है भारतीय वजीर दाखिला सिखों को निशाना बनाने में मुलव्वस हैं। अमित शाह ने ही कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने कौमी सलामती कमेटी में अमित शाह के घिनौने किरदार की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में बताया था अमित शाह अलहदगी पसंद सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन में शामिल थे। मॉरिसन ने कमेटी को बताया कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को अमित शाह के किरदार की तस्दीक की थी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे में साबिक DIG जावेद सोनारो जस्कानी, साबिक SSPs असद चौधरी, आसिफ रजा बलोच, साबिक इंचार्ज CIA इनायत जरदारी, साबिक SHO न्याज खोसो नामजद हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी अब बाहर नहीं निकलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कोई भी गाड़ी शोरूम और पोर्ट से रजिस्टर कराए बगैर नहीं निकल सकेगी। महकमा एक्साइज में मुताद्दिद इस्लाहात लेकर आए हैं। कोशिश की है कि पूरे निजाम को ऑनलाइन कर दें। शहरी घर बैठे 5 मिनट में नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने बिलवास्ता सरकारी मालूमात की फराहमी पर पाबंदी लगा दी। मीडिया समेत किसी भी शख्स को सरकारी दस्तावेजात फराहम नहीं की जाएगी। महकमा तालीम का कहना है सरकारी मालूमात की फराहमी सर्वेंट कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुताद्दिद बैंक बंद करा दिए। SOPs के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के गार्ड रखने पर पाबंदी आयद है। हर बैंक को 3 गार्ड रखने का पाबंद किया गया है। सेक्टर G9 में कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। G14-4 में भी बैंक डकैती का पर्चा कट गया। डाकू ने बैंक गार्ड को गोली मारी, असलहा छीना और 18 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। कागान और नारान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी,
स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से ठंडक पड़ गई। हरिपुर में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का दौरा। सदर, वजीर दिफा, वजीर खारिजा और अस्करी हुकाम से मुलाकात। पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। इजरायली फौज की लेबनान पर भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 77 अफराद शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है लेबनान में इसराइली बमबारी में रोजाना 2 बच्चे शहीद हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट दाग दिए। 1 माह के दौरान जमीनी लड़ाई में 33 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 18वीं खेप बैरूत पहुंच गई। 95 टन इमदादी सामान गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था। फलस्तीन की हिमायत पर मारूफ एंकर मेहदी हसन को नस्ली तासुब का सामना। CNN के प्रोग्राम में तज्जियाकार रायन जेम्स गेडोस्की ने मेहदी हसन पर नफरत अंगेज जुमले कसे। कहा कि आप हमास के हिमायती हैं, कहीं आपका भी पर ना फट जाए। मेहदी हसन ने कहा आप लाइव प्रोग्राम में मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। रायन जेम्स के जुमलों पर CNN ने मेहदी हसन से माफी मांग ली। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंग्स का मुल्तान के घंटा घर का दौरा। कहा पाकिस्तान में US एड के ताउन से मंसूबे जारी हैं। घंटा घर की बहाली का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों के लिए $8.4 मिलियन की फंडिंग कर चुके हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की मुहिम जोरों पर। कबल अज वक्त वोटिंग में 5 करोड़ अमरीकियों ने वोट डाल दिए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस अवाम को ट्रंप से डराने लगी। कहा ट्रंप अपने नायब सदर तक को कत्ल कराना चाहते थे, अगर वो जीत गए तो मुखालिफिन को जेलों में डाल देंगे। ट्रंप ने कमला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार दिया। ट्रंप के करीबी साथी जेल से रिहा। साबिक मुशीर स्टीव बैनन ने 4 माह कैद का जिम्मेदार कमला हैरिस को ठहरा दिया। स्टीव बैनन को कैपिटल हमला केस में तौहीन कांग्रेस पर कैद की सजा सुनाई गई थी। सऊद शकील और नोमान अली की शानदार परफॉर्मेंस का शानदार रिवॉर्ड। सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में 20 विकेट लेने वाले नोमान अली टॉप 10 बॉलर्स में शामिल। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। साजिद खान की भी 12 दर्जे तरक्की। सलमान अली आगा की 6, रिजवान की 1 दर्जे तनज़ुली हुई। शाहीन आफरीदी 15वें नंबर पर चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना किया। शायकीन की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब लाने की हिदायत की। कहा दिन रात एक करके वक्त से कबल काम मुकम्मल किया जाए। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमारे लिए एजाज है। 2 करोड़ दो वरना मार देंगे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को फिर कत्ल की धमकी। मुंबई पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान सलमान खान को दूसरी बार कत्ल की धमकी मिली है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। अनवर मकसूद की नौजवानों को आर्ट्स काउंसिल आने की दावत। कहा 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में नौजवानों से दिल की बातें करूंगा। सकाफती मेले में म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश किया गया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा।